instantaneous value of current I or EMF E. The value of current in an AC circuit at any instant of time is called instantaneous current. किसी instant of time t पे जो करंट आएगा AC में उसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस करंट. फॉर एग्जाम्पल this I is the instantaneous current at time t. I is equal to I naught sin omega t. This is the alternating current. And for example, there is a phase, initial phase phi. Then we use the equation I is equal to I naught sin omega t plus phi. If there is no phase difference, for example, graph starts from origin, then we use I is equal to I naught sin omega t. ठीक है स्टूडेंट. And if the graph not starts from origin with some phase, initial phase, for example this initial phase is phi, then we use instantaneous value of current I is equal to I naught sin omega t plus phi. Phi is the initial phase. Now where omega t plus phi is called phase and phi is the phase difference. ठीक है स्टूडेंट. Initial phase or phase difference. The value of EMF in an AC circuit at any instant of time is called instantaneous EMF. किसी एक टाइम इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर जो EMF आएगा AC सर्किट में, that is called a instantaneous EMF E. And E is equal to E naught sin omega t if there is no phase difference, initial phase. And E is equal to E naught sin omega t plus phi. If there is initial phase difference phi or initial phase phi, then E is equal to E naught sin omega t. स्टूडेंट यहाँ पे मेगा आना omega t plus phi. Now peak or maximum value of current. So I naught, this I naught is called peak or maximum value of current, और जो E is equal to E naught sin omega t if there is initial phase phi or phase difference, then this is the peak value of EMF E naught. The maximum value of current or voltage in an AC circuit is called peak value or crest value or amplitude. ठीक है स्टूडेंट. So this I naught is the maximum value, peak value, crest value or amplitude of current, and similarly E naught is the maximum value of voltage, peak or crest value or amplitude of EMF E naught. For example, this is a graph. These are the maximum value of current or EMF. These are the peak values. So these are the peak values. करंट की इक्वेशन होगी तो स्टूडेंट यहाँ पे करंट आ जाएगा आई नॉट. अगर ईएमएफ की इक्वेशन होगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ई नॉट. नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट और ईएमएफ. एंड अरिथमेटिक एवरेज ऑफ ऑल इंस्टेंटेनियस वैल्यूज इन ए साइन वेव फॉर हाफ साइकिल इज कॉल्ड मीन और एवरेज वैल्यू. ठीक है स्टूडेंट. रिप्रेजेंट करेंगे आई सबस्क्रिप्ट क्या आ गया? ए वी जे. ई सबस्क्रिप्ट ए वी जे. जितनी भी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज आएंगी साइन वेव में फॉर हाफ साइकिल के लिए, फॉर एग्जांपल ये आपकी फुल साइकिल है, ये आपकी हाफ साइकिल है. यहाँ पे जितने भी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ करंट और ईएमएफ आएंगे उनका आप क्या करेंगे? एवरेज करेंगे. एवरेज करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर हाफ साइकिल. फॉर फुल साइकिल इट इज जीरो, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण जब हम एवरेज निकालेंगे इनकी और इनकी, वो क्या आ जाएगी? जीरो. सो दैट्स वाई हम यहाँ पे जो एवरेज निकाल रहे हैं फॉर किसके लिए निकाल रहे हैं? हाफ साइकिल के लिए. So here half cycle is used because in a full cycle the average current or EMF is zero because they are cancelled with each other. Reason alternating current or voltage during first half cycle 0 to t by 2 is positive and during other half cycle t by 2 to t is negative. जब हम full cycle में एवरेज निकालेंगे तो alternating current और alternating voltage की एवरेज वैल्यू क्यों आएगी? जीरो. So that's why हमने यहाँ पे जो एवरेज वैल्यू निकालनी है किसके लिए निकालनी है? फॉर हाफ साइकिल. फॉर फुल साइकिल एवरेज वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज इज जीरो. और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाई इट इज जीरो.
इट इज गिवन बाय आई एवरेज 2/पाई इंटू आई नॉट, और 2/पाई को सॉल्व करोगे स्टूडेंट तो क्या आ जाएगा 0.637 ऑफ आई नॉट और 63.7% ऑफ आई नॉट. सो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट in an AC circuit is 63.7% of I naught. Similarly, average value of EMF is 2/pi into E naught, or 63.7% of E naught or 0.637 of E naught. So average value of current for half cycle, ये स्टूडेंट अपन में प्रूव करना है. ये 63.7%, 0.637 और 2/pi कैसे आया. एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, हमारा फंक्शन क्या है, टाइम का फंक्शन है. टाइम कैसे वेरी कर रहा है, फ्रॉम t1 टू t2 इज डिफाइंड एज. स्टूडेंट पहले हम जनरल फंक्शन देखेंगे. कोई जनरल फंक्शन है, उसकी एवरेज वैल्यू फ्रॉम टाइम t1 टू t2 क्या आएगी. t1 टू t2 इंटीग्रेशन किया, टोटल ft dt डिवाइड बाय टोटल टाइम. ये है एवरेज वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन. ft dt इंटीग्रेशन फ्रॉम t1 टू t2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t1 टू t2 dt. ये क्या आ जाएगा, एवरेज वैल्यू ऑफ ए फंक्शन f. सिमिलरली अब हमने करंट की निकालनी है, तो हमें पता है इंस्टेंटेनियस करंट क्या है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. इसका एवरेज क्या होगा, I dt टाइम क्या है फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल 0 टू t/2 डिवाइड बाय टोटल टाइम 0 टू t/2 dt. सो आई की वैल्यू पुट कर दीजिए, आई इज अ फंक्शन ऑफ टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, साथ में क्या आ गया डी टी और डिवाइड बाय टोटल टाइम. स्टूडेंट यहाँ पे आई नहीं आना, ठीक है स्टूडेंट. सो स्टूडेंट आई नॉट इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लीजिए, मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ. आई नॉट कॉन्स्टेंट है, पीक वैल्यू है, उसको बाहर निकाल लिया, साइन ओमेगा टी डी टी एंड साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉज ओमेगा टी, और टी का साथ में वेरिएबल क्या है ओमेगा, वो डिवाइड हो जाएगा. ये साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन आ गया माइनस कॉज ओमेगा टी डिवाइड बाय ओमेगा, माइनस कॉज ओमेगा टी डिवाइड बाय ओमेगा, टाइम इंटरवल 0 टू t/2 फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल. और स्टूडेंट इसका यहाँ पे आई नहीं आना है स्टूडेंट, इसका भी मैं कर देता हूँ डी टी 0 टू t/2, डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा t 0 टू t/2, पहले का पुट करना है हायर लिमिट t/2 माइनस 0, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया t/2, और ये रहा स्टूडेंट t/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये t. ठीक है स्टूडेंट, इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया t/2, और इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया आई नॉट माइनस कॉज ओमेगा टी डिवाइड बाय ओमेगा, और नीचे क्या है t/2. सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा और ये t नीचे, और ये आई नॉट, और ये साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉज ओमेगा टी डिवाइड बाय ओमेगा, और ये रेंज लिमिट्स फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल. तो साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या है माइनस कॉज ओमेगा टी ओवर ओमेगा. ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ. एंड ओमेगा की वैल्यू क्या है 2π/t, यहाँ पे पुट कर दीजिए. कॉज ओमेगा टी था, यहाँ पे हमने पुट कर दिया 2π/t. ठीक है स्टूडेंट, और ये 2/t था, यहाँ भी ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी हमने, जो ये आया था यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू पुट की 2π/t, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू पुट की 2π/t. इसको सॉल्व कीजिए 2/t आई नॉट, अब ये स्टूडेंट t ऊपर चला जाएगा, ये 2π नीचे है, माइनस कॉज ओमेगा की वैल्यू पुट की 2π/t, और साथ में ये एट एनी इंस्टेंट स्मॉल t, और स्मॉल t वेरी कर रहा है 0 टू t/2. पहले पुट करेंगे हायर लिमिट, ये आ गया सॉल्व करने के बाद, पहले पुट करेंगे हायर लिमिट यहाँ t पे t/2, फिर माइनस लगा के t की जगह 0 पुट करेंगे. सो ये 2 कैंसिल हो गए, और ये टी भी क्या हो जाएंगे कैंसिल.
ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया आई नॉट ओवर पाई। ठीक है स्टूडेंट, और ये माइनस साइन बाहर निकाल लिया, कॉज 2 पाई ओवर टी, यहाँ पे टी की वैल्यू पहले का पुट की टी बाय 2, माइनस लगा के टी की वैल्यू फिर क्या पुट करनी है, लोअर लिमिट 0, ये टी कैंसल, ये 2 कैंसल, माइनस आई नॉट ओवर पाई, ये कॉस पाई रह गया, कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है -1, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, -1 -1 -2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, क्या आ गया हमारे पास 2 I0 ओवर पाई। ठीक है स्टूडेंट, आ गया, और इसकी वैल्यू क्या आ गई 2 ओवर पाई की 0.637। तो वैल्यू पुट की, इसको सॉल्व कीजिए, पहले का पुट किया हायर लिमिट, यहाँ पे t/2, फिर माइनस लगा के क्या पुट किया टी की वैल्यू, स्मॉल टी की वैल्यू 0। ठीक है स्टूडेंट, अगेन ये 2 कैंसल, ये टी कैंसल, कॉस पाई क्या होता है -1, कॉस 0 क्या होता है 1, यहाँ आ गया कॉस पाई यहाँ आ गया कॉस 0। ठीक है स्टूडेंट, और ये क्या आ गया सॉल्व करके 2, एवरेज वैल्यू क्या आ गई 2I0 ओवर पाई इज इक्वल टू 0.637 I0। दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। सिमिलरली स्टूडेंट, जहाँ पे I0 था वहाँ पे हमने क्या डाल लेना है E0, सारे स्टेप यही करने हैं, और एवरेज वैल्यू PMF क्या आ जाएगी 0.637 E0। स्टूडेंट, जहाँ पे अगर हमने अब एवरेज वैल्यू निकालनी है किसकी, EMF की, क्या E0, जहाँ पे I0 साइन ओमेगा टी था वहाँ पे क्या आ जाना है E0 साइन ओमेगा टी dt फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल डिवाइड बाय टोटल टाइम dt 0 to t/2, और क्या आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा 2 ओवर पाई E0 0.637 E0। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास एवरेज वैल्यू करंट भी आ गया, एवरेज वैल्यू ऑफ EMF भी आ गई। मतलब यहाँ पे अब जब हमने EMF निकालना है, ई एवरेज निकालना है, तो I0 की जगह क्या आ जाना है E0। ठीक है स्टूडेंट, बाकी सारे स्टेप आपके वही हैं। यहाँ पे क्या आ जाना है E0, 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 और हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 2 ओवर पाई E0, एवरेज वैल्यू ऑफ EMF। ठीक है स्टूडेंट, फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल। नेक्स्ट स्टूडेंट आ गया रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है स्टूडेंट, फॉर द करंट द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ स्क्वायर्स, पीछे हमने क्या निकाला था स्टूडेंट एवरेज मीन निकाला था, इस बार क्या निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ किसका, मीन ऑफ स्क्वायर्स का, ऑफ ऑल इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ करंट ओवर वन कंप्लीट साइकिल। अब कौन साइकिल है वन कंप्लीट साइकिल, एवरेज वैल्यू क्या थी 0 फॉर वन कंप्लीट साइकिल, सो डेट्स वाई हमने क्या किया स्क्वायर कर दिया, नेगेटिव वैल्यूज भी क्या हो जाएंगी पॉजिटिव, उसका फिर बाद में स्क्वायर रूट कर दिया, और जो मीन आएगा वो क्या होगा RMS वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है स्टूडेंट, स्क्वायर रूट ऑफ किसका मीन ऑफ स्क्वायर्स, क्योंकि हम अब कंप्लीट साइकिल की बात कर रहे हैं इसीलिए हमने क्या किया स्क्वायर्स कर दिया, ताकि नेगेटिव हाफ साइकिल वाले भी क्या हो जाए पॉजिटिव, उसके बाद स्क्वायर रूट निकाल लिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ EMF और करंट। तो RMS वैल्यू इज आल्सो कॉल्ड, दूसरा नाम भी है इफेक्टिव वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट। इट इज गिवन बाय, और क्या आएगा रिजल्ट IRMS, क्या है ये क्या है मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ करंट, उसके बाद स्क्वायर रूट कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो इसका आंसर आएगा I0 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 कितना होता है 0.707 I0। इसका प्रूफ अभी देखते हैं। सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF ओवर वन कंप्लीट साइकिल, उसका क्या नाम होगा रूट मीन स्क्वायर EMF। उसका भी ये क्या है स्क्वायर ऑफ मीन ऑफ ऑल इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ EMF, बाद में स्क्वायर रूट कर दिया, तुम्हारे पास क्या आ गया रूट मीन स्क्वायर। उसका आंसर भी क्या आएगा E0 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2.707 ऑफ E0।
अब प्रूफ आ गया स्टूडेंट। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एवरेज ऑफ आई स्केयर ओवर वन कंप्लीट साइकिल, आई स्केयर आर एम एस। स्टूडेंट यहाँ पे आई स्केयर डी टी आ गया और नीचे क्या आ गया, मीन निकालना था, टोटल टाइम डी टी का इंटीग्रेशन फॉर फुल कंप्लीट साइकिल 0 to t। आई नॉट की वैल्यू, आई की वैल्यू कितनी है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पुट कर दीजिए। क्या आ गया, आई नॉट स्केयर साइन स्केयर ओमेगा टी डी टी, और नीचे स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन अब कैपिटल टी आ जाएगा। डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी, टी कैसे वेरी कर रहा है, 0 to t, पहले हायर लिमिट फिर लोअर लिमिट, क्या आ गया टोटल टाइम टी। तो नीचे वाले का इंटीग्रेशन सीधा ही लिख दिया हमने कैपिटल टी, ऊपर वाले का इंटीग्रेशन हमने निकालना है। अब स्टूडेंट साइन स्केयर ओमेगा टी क्या होगा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, यहाँ पे ओमेगा आना स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या था, 1 माइनस 2 साइन स्केयर थीटा, और साइन स्केयर थीटा क्या आ गया, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, ठीक है स्टूडेंट। सो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू अब हमने क्या पुट करनी है, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, और आई स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर इंटीग्रेशन से बाहर ले आओ क्योंकि वो कांस्टेंट है। आई नॉट स्क्वायर और ये टी ये वाला था, और ये साइन स्क्वायर ओमेगा 2 की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2, और ये डी टी जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं टाइम का। और ये आई स्क्वायर आर एम एस क्या आ गया, आई नॉट स्क्वायर, और ये 2 ये वाला 2t। अब स्टूडेंट इस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप कर देता हूँ, 1 इंटू डी टी माइनस कॉज 2 ओमेगा टी डी टी। अब डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, t, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 2 ओमेगा टी, और डिवाइड किसके साथ करना है, टी का वेरिएबल यहाँ पे कौन है अब 2 ओमेगा, और लिमिट्स क्या होंगी टोटल 0 to कैपिटल टी फुल साइकिल टाइम पीरियड, ठीक है स्टूडेंट। सो आई स्केयर आर एम एस आई नॉट स्केयर बाय 2t, 1 का इंटीग्रेशन 1 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन t, कॉस 2 ओमेगा टी का क्या आ गया, साइन 2 ओमेगा टी, और t का वेरिएबल क्या है 2 ओमेगा, वो डिवाइड हो गया, और ये 2 बार लिख लिया हमने, और ये t ये वाला, और ये आई नॉट स्केयर, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या पुट करना है, पहले हायर लिमिट कैपिटल टी, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट, और ओमेगा की वैल्यू भी पुट करनी है हमने यहाँ पे 2 पाई ओवर टी, यहाँ भी ओमेगा की वैल्यू क्या पुट करनी है 2 पाई ओवर कैपिटल टी, ठीक है स्टूडेंट। कॉस, बिकॉज कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या था, साइन थीटा ओवर टी का वेरिएबल है ओमेगा, ठीक है स्टूडेंट, उसकी वजह से ये आपका रिजल्ट आ गया। सो स्टूडेंट क्या पुट करना है यहाँ पे, ये ओमेगा है, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू क्या पुट की 2 पाई ओवर टी, और यहाँ भी नीचे ओमेगा की वैल्यू क्या पुट की हमने 2 पाई ओवर टी, ठीक है स्टूडेंट। और फार, और ये क्या लिमिट्स 0 to t, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे क्या आ जाना है t माइनस 0, मैंने कहा था t आ गया, मैं आपको करके बता देता हूँ स्टूडेंट। पहले यहाँ पे हायर लिमिट पुट कीजिए t माइनस 0, इसका काम ख़त्म हो गया, साइन 2 ओमेगा की वैल्यू 2 पाई ओवर टी, पहले स्टूडेंट यहाँ पे क्या पुट करना है हायर लिमिट कैपिटल टी माइनस, ये ब्रैकेट में डाल लेता हूँ ये वाला माइनस साइन, ये वाला साइन 2 इंटू 2 पाई ओवर टी, फिर क्या पुट करना है टी की वैल्यू यहाँ पे 0, ठीक है स्टूडेंट। और ये नीचे क्या है 2 इंटू 2 पाई ओवर टी, ये ओमेगा की वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट। ये टी क्या हो गए कैंसल, और ये क्या आ गया साइन 4 पाई, साइन 4 पाई क्या होता है, साइन n पाई क्या होता है 0, और साइन 0 भी क्या होगा 0, ये सारी स्टेटमेंट क्या आ गई अब आपकी 0, और आपके पास रह क्या गया ओनली कैपिटल टी। तो इस सारे का इंटीग्रेशन क्या आ गया स्टूडेंट ओनली कैपिटल टी, ठीक है स्टूडेंट, ये कैपिटल टी आ गया। तो क्या आ गया
और ये सारा कैपिटल टी आ गया था, और ये टी एंड टी क्या हो गए, कैंसल। क्या आ गया हमारे पास, आई नॉट स्केयर बाय 2, और आई आर एम एस क्या आ गया, स्केयर रूट ले लीजिए, आई नॉट बाय स्केयर रूट ऑफ 2, और 1/√2 क्या होता है, 0.707। तो क्या आ गया आई आर एम एस, 0.707 ऑफ आई नॉट, और आई नॉट ओवर स्केयर रूट ऑफ 2। ठीक है स्टूडेंट, प्रूफ हो गया। तो सिमिलरली जहाँ पे आई नॉट था वहाँ पे क्या डाल लो, ई नॉट स्केयर, यहाँ भी क्या आ गया, ई नॉट स्केयर, यहाँ भी क्या आ गया, ई नॉट स्केयर, यहाँ भी क्या आ गया, ई नॉट स्केयर, और यहाँ भी क्या आ जाना है, ई नॉट, यहाँ भी क्या आ जाना है, ई नॉट, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाना है, ई आर एम एस, क्या आ जाना है, ई आर एम एस। तो ई आर एम एस की वैल्यू क्या आ गई, ई नॉट ओवर स्केयर रूट ऑफ 2 मीन्स 0.707 ऑफ ई नॉट, आर एम एस वैल्यू ऑफ ई एम एफ। ठीक है स्टूडेंट। सो नोट, गिवन एसी सोर्स वोल्टेज इज आरएमएस वोल्टेज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट। आपके घरों में जो एसी करंट आ रहा है, आपके घरों में लाइट आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, करंट फ्लो कर रहा है आपकी वायर्स में, उस जो करंट फ्लो कर रहा है स्टूडेंट उसका नाम क्या है, आज से आपने क्या बोलना है, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। ठीक है स्टूडेंट, दैट इज नॉट ए सिंपल करंट। जो आपके घरों में एसी सोर्स वोल्टेज मीन्स आपके घरों में जो करंट फ्लो कर रहा है, जो वोल्टेज आ रही है, उस वोल्टेज सोर्स का नाम क्या है, एसी सोर्स वोल्टेज का नाम क्या है, आरएमएस वोल्टेज। और जो करंट आपके घरों में फ्लो कर रहा है वो क्या है, आरएमएस करंट। ठीक है स्टूडेंट, करंट इन एसी सर्किट इज आरएमएस करंट। तो एसी सर्किट जब भी आ गया करंट आएगा तो वो आरएमएस करंट होगा, वोल्टेज आएगी एसी जब भी आ गया तो वो आरएमएस वोल्टेज होगी। तो एसी अमीटर एंड वोल्ट मीटर read the RMS value, that is effective value of alternating current and voltage। जो आप अमीटर यूज करते हो, वोल्ट मीटर यूज करते हो एसी को मेजर करने के लिए, वो कौन सी वैल्यू आपको बताती है, आरएमएस वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट, अगर करंट मेजर कर रहे हो अमीटर से तो वो क्या होगा, आरएमएस करंट। अगर वोल्ट मीटर से वोल्टेज रीड कर रहे हो तो वो क्या होगा, आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस ईएमएफ। ठीक है स्टूडेंट, these are the very important points। AC can be measured by using hot wire ammeters। स्टूडेंट ये आपके कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाता है, बोर्ड में भी क्वेश्चन आ सकता है। AC can be measured, कह रहा है हम AC से, AC को कैसे मेजर कर सकते हैं, by using hot wire ammeters। सिंपल अमीटर से हम AC नहीं यूज कर सकते, कौन से मीटर यूज करते हैं, हॉट वायर मीटर्स और हॉट वायर वोल्ट मीटर्स, बिकॉज द हीट जनरेटेड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्योंकि जो हीट जनरेट होगी, फॉर एग्जांपल हीट आ गई हमारे पास आई स्केयर आर टी, हॉट वायर मीटर ने हमें क्या रीडिंग दे दी, हीट की वैल्यू बता दी, आर कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस कितने टाइम के लिए करंट फ्लो कर रहा है वो हमें पता है, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, आई आर एम एस। क्या निकाल लेंगे, आई आर एम एस। सो एसी को हम कैसे मेजर करते हैं, बाय यूजिंग हॉट वायर मीटर्स और हॉट वायर वोल्ट मीटर्स, बिकॉज जो हीट जनरेट है वो डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, बिकॉज जो एसी करंट है वो क्या डायरेक्शनल है, उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है पीरियोडिकली। सो डेट्स वाई हम एसी को डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट, हीट हमें पता चल जाएगी, वो हमें हीट की रीडिंग देता है, और इंडिपेंडेंट इनडायरेक्टली हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट, कन्वर्ट करके इंस्ट्रूमेंट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके हमें करंट की रीडिंग दे देता है, लेकिन वो अल्टीमेटली रीड क्या करता है, वो हीट रीड करता है। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमें करंट की फॉर्म में ही आंसर देता है, एम्पियर की फॉर्म में ही आंसर देगा। लेकिन मैं आपको मेजर करने का तरीका बता रहा हूँ कि जो अमीटर है वो अल्टीमेटली काम कैसे करता है, वो अल्टीमेटली हीट को मेजर करता है। ऑटोमेटिकली अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सर्किट्स हैं, वो ऑटोमेटिकली हीट को इस फार्मूले के हिसाब से आगे कन्वर्ट करके हमें करंट की वैल्यू दे देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, AC produces the same heating effect as that of DC of magnitude I is equal to IRMS। ठीक है स्टूडेंट, मतलब
एसी में भी यही फॉर्मूला चलेगा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एम एस आर टी, और डीसी के लिए क्या था, आई स्क्वायर आर टी। ये डीसी करंट है, और एसी करंट को क्या बोलेंगे अब आज के बाद, हमने अब एसी करंट का नाम क्या रख दिया है, आई आर एम एस। ठीक है स्टूडेंट, आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट। So some important points regarding alternating current. AC is more dangerous than DC. Student, ये आपके एग्जाम में भी आ जाता है, AC is more dangerous than DC of same voltage. फॉर एग्जाम्पल अब मैं बोलूँ 200 वोल्ट AC, तो स्टूडेंट 200 वोल्ट AC का मतलब क्या है, वो ERMS वैल्यू है। क्या वैल्यू है, ERMS वैल्यू है। अगर मैं 200 वोल्ट AC बोल दूँ तो उसका मतलब 200 वोल्ट नहीं है, उसका मतलब है ERMS 200 वोल्ट है। और ERMS क्या है, अभी हमने प्रूव किया है, E नॉट ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। E नॉट क्या आ गया, ERMS स्क्वायर रूट ऑफ 2, और 200 वोल्ट AC का क्या मतलब था, ERMS 200 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब स्टूडेंट आंसर क्या आ गया, 200 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया, E नॉट। इसका मतलब अगर मैं RMS वैल्यू 200 वोल्ट बोलूँ तो जो इस ग्राफ का पीक है, कभी ना कभी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट EMF क्या आएगा, 200 स्क्वायर रूट ऑफ 2 वोल्टेज फॉर 200 वोल्ट AC। ठीक है स्टूडेंट, कभी ना कभी उसका आंसर क्या आएगा, 200 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 वोल्ट फॉर 200 वोल्ट AC। एंड फॉर DC 200 वोल्ट DC तो 200 वोल्ट ही रहेगी। ठीक है स्टूडेंट, अब मुझे बताइए 200 वोल्ट अगर मैं AC बोलूँ तो उसका आंसर क्या है, 200 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 वोल्ट। अगर मैं 200 वोल्ट DC बोलूँ तो उसका आंसर 200 वोल्ट ही है। अब दोनों में से मैग्नीट्यूड बताओ किसका ज़्यादा है, AC वाले का। सो दैट्स व्हाई 200 वोल्ट AC इज मोर देन 200 वोल्ट DC। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो दैट्स व्हाई AC इज मोर डेंजरस देन DC ऑफ सेम वोल्टेज। दोनों की वोल्टेज सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड अल्टीमेटली कभी ना कभी AC का मैग्नीट्यूड 200 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 वोल्ट आने की वजह से मैग्नीट्यूड क्या हो गया, बढ़ गया है। नाउ AC कैन बी प्रोड्यूस बाय प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब अल्टरनेटिंग करंट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से। ठीक है स्टूडेंट, AC ओबे ओम्स लॉ एंड जाउल्स हीटिंग लॉज। मैंने अभी आपको बता दिया है, V इज इक्वल टू IR भी फॉलो करता है, और हीट H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RMS RT इसको भी फॉलो करता है AC। So if I naught is peak current, then RMS current is, स्टूडेंट अभी हमने किया, RMS करंट क्या आएगा, अगर I naught पीक करंट है, I naught ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, और 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, 0.707, बोथ 2 and 3। The average EMF during the positive half cycle of an AC supply of peak value E naught, एवरेज वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, 2 E naught ओवर पाई। ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट आ गया AC जनरेटर, दिस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स।